guys. Good morning, students. How are you? Yes, I'm also fine. So, as you know that we have completed our PT1 course in English 1. It means English reader. There are 2 chapters, The Heartless Bishop and Bachendri Pal. We have completed all the work, book filling and question answer also. From today we are going to start our English grammar course. So let's start the first chapter of English grammar, that is English alphabetical order. What's the name of chapter first? It is English alphabetical order. Actually, this is very practical chapter. It means in this chapter we are going to read what is alphabetical order. इसे हम alphabetical order कहते हैं, and how to read the dictionary. How to read dictionary. डिक्शनरी हम कैसे रीड करते हैं, है ना. डिक्शनरी में किस प्रकार से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं. एज यू फाइंड इट्स वेरी इजी नाउ अ डेज, बिकॉज directly wherever we get any kind of confusion in meanings, we just google the word. But there is dictionary also, and we should know how to read the dictionary. डिक्शनरी कैसे रीड करी जाती है, डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे देखे जाते हैं, डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है ये सब हम देखेंगे, और प्रैक्टिकली हमें डिक्शनरी देखनी अच्छे से आनी चाहिए. इसलिए ये जो चैप्टर है वो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस का है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी रीड द थ्योरी ऑल ओवर, सो वी शुड नो व्हाट इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, एज इन हिंदी वी हैव वर्णाज, है ना. हिंदी में वर्णमाला होती है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं. उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? हाउ कैन वी डिफाइन द अल्फ़ाबेट? सो द अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ सिम्बल्स नोन एज लेटर्स. अल्फ़ाबेट सिम्बल्स का सेट होता है. सिम्बल्स का सेट होने का क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज की लिपि डेवलप होती है तो हर एक सिंबल को एक तरह से रीड किया जाता है, एक साउंड से रीड किया जाता है. एज हिंदी में देवनागरी लिपि में मैं लिखूँगी ये सिंबल तो मैं इसे पढ़ूँगी अ. सेम एज when in English in Roman script I write this one, then I will read it A. साउंड इंग्लिश में अलग अलग होते हैं अल्फ़ाबेट के. ए साउंड अ साउंड भी करता है, ए अल्फ़ाबेट जो है वो अ साउंड भी करता है, ए साउंड भी करता है, आ साउंड भी करता है. करेक्ट. तो लेट्स सी, द अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट. अल्फ़ाबेट क्या है? एक तरह से सेट है. किसका? ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स का सेट. नोन एज लेटर्स, जिन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं. दैट आर यूज टू फॉर्म वर्ड्स, और इनको मिलाकर ग्रुप ऑफ लेटर्स और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट को हम वर्ड्स कहते हैं. करेक्ट. एट इट्स मोस्ट basic, the English alphabet is composed of 5 vowels and 21 consonant. So there are total 26 alphabet, 5 vowels and 21 consonants. Is that clear, beta? There are total 26 alphabets, 5 vowels and 21 consonants. For a total of 26 letter, together vowels and consonant form syllable in speech. The order in which the letters of alphabet appear is called the alphabetical order. It means जब हम किसी भी वर्ड को रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि बी कम्स, देन एज लाइक सपोज हियर इज़ अ वर्ड BOY. So first come B, then O, then Y. But it is not in alphabetical order. When we put A, B, C, D up to Z continuous in order, that is called alphabetical order. जैसे हम ABCD पूरे लेटर्स का जो सेट होता है प्रॉपर सीक्वेंस में, उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
कहते हैं. टू पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यू नीड टू पुट देम इन ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट. अब सपोज आपके सामने मैंने 5 अल्फ़ाबेट लिख कर दिए, एज लाइक 1 minute, as like O, S, A, P. Then what will you do? When we read the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z from A to Z, then what comes first of all? A. So if I need to put this one in alphabetical order, I will put A first of all. Then what can you see? O. Correct? Then I have to put here O. Then what can you see? P or S? P. Then what I should have to put here? P. And the last one is S. As you write or as you learn in maths, ascending order and descending order. So same in alphabetical order. From A to Z we have to put the words like that. Here are some examples. First of all, look this example. Here are 3 words: cat, bat, ant. So what will you do, beta? You go to first alphabet A, B, C, and you find what comes first of all. In alphabetical order, what comes first? Then A comes first, so you will write here A N T. What comes after that? B. Then you will write here B A T, and the last one is C A T, cat. Correct? Yes. Let's see the another example also. If all the words start from the same letter, what will you do? Simple. In this example, the first alphabet is different, but if the word start by the same alphabet, then what will you do? फिर आप क्या करेंगे? At this time we have to go at second alphabet. हमें कहाँ जाना है? फिर second alphabet के पास जाना है. second alphabet के पास जाना है. यहाँ पर थोड़ा सा print mistake है. This word is B-O-A-T, boat. As like सब में B आ रहा है पहले, तो हमें B को skip कर देना है. अब हम सेकेंड अल्फ़ाबेट के पास जाएंगे, ई, ए और ओ. देन व्हाट कम्स फर्स्ट? ए. तो हम सबसे पहला वर्ड लिखेंगे बी ए टी, बैट. देन ई या ओ में क्या आता है? पहले ई आता है, तो सेकेंड हम लिखेंगे बी ई टी, बेट. एंड देन थर्ड हम लिखेंगे बी ओ टी, बोट. आई होप यू आर गेटिंग टू मी. आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? यस. सी द नेक्स्ट वन. All the words start with B, so the next letter is considered. सब जब सेम आते हैं पहला अल्फ़ाबेट, तो हम सेकेंड अल्फ़ाबेट के पास जाते हैं. Sometime it also happen that सेकेंड अल्फ़ाबेट भी सेम आता है, तो हम थर्ड अल्फ़ाबेट के पास जाते हैं सीक्वेंस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए. हम एक एग्जांपल देकर आपको बताएं. सपोज आई राइट हियर CAT, cat, CAN, can, and CATCH, catch. So if you see the first alphabet, see here, then I just told you go to second alphabet, then you will find here second alphabet also same. So just cut it, it means avoid it. Go to third alphabet. Here T, and here N. What comes first, T or N? यस, व्हाट कम्स फर्स्ट, टी और एन. फटाफट देखिए क्या आता है पहले, टी और एन. वैसे तो आपको याद होना चाहिए. टी और एन में आता है एन पहले. देन व्हाट विल वी पुट? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन. अब मैं आपको यहीं लिख के बता देती हूँ, बिकॉज वी रिमेंबर द वर्ड्स. एक कैन था, एक कैट था, एंड एक था CATCH, कैच. अब देखो थर्ड अल्फ़ाबेट के पास हम गए थे और एन पहले आता है, तो हमने यहाँ लिखा था CAN, कैन. अब यहाँ देखिए बचे हुए 2 वर्ड्स हैं आपके पास. इसमें इसका थर्ड अल्फ़ाबेट सेम है, इसका थर्ड अल्फ़ाबेट सेम है. अब क्या होगा? फोर्थ अल्फ़ाबेट के पास जाएंगे. तो फोर्थ जब इसमें नहीं है तो पहले हम पुट करेंगे कैट, और उसके बाद जब उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट के वर्ड्स आएंगे
तो वो अगला लास्ट लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? यस। सो लेट्स सी, रीराइट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन वर्ड्स को लिखना है। आई जस्ट जूम द पिक्चर सो वी विल फाइंड इजी वन। यस, सी द फर्स्ट अल्फ़ाबेट N, N, N. All three words are starting with N. So we avoid the N. N को हम एक बार अवॉइड कर देंगे। Go to the second one. फर्स्ट में क्या है बेटा, I, then U, then O. तो हमें थर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ही हमें क्लियर हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 90। सबसे पहले हम लिखेंगे 90 बिकॉज N के बाद I आया है। देन हम लिखेंगे नॉप, क्योंकि U पहले आता है या O पहले आता है बच्चे, O पहले आता है, U बाद में आता है। तो थर्ड वर्ड हो जाएगा नर्स, थर्ड वर्ड हो जाएगा नर्स। क्लियर? चलिए एक और मैं करके बताती हूँ, फिर 3, 4, 5 यू हैव टू डू योर सेल्फ। आपको 3, 4, 5 जो है वो सेल्फ करना है। लुक एट द सेकेंड वर्ड। उससे पहले हम ये इरेज कर लेते हैं सो दैट वी विल गेट ईजी वन। हाँ जी, लुक, एटलास, एप, एप्पल, तीनों वर्ड ए से स्टार्ट हुए हैं, तो हम ए को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। ए को हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। नाउ लुक एट द सेकेंड वन, पी पहले आता है या टी पहले आता है, ऑब्वियसली पी पहले आता है, टी नहीं आता, तो ये एक बार साइड में हो जाएगा। लुक नाउ, एप एंड एप्पल। तो अभी मैंने आपको जब कैच का एग्जाम्पल बताया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि अगर हमें थर्ड अल्फ़ाबेट तक जाना हो तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, थर्ड अल्फ़ाबेट में। नाउ लुक, थर्ड अल्फ़ाबेट है ई और यहाँ पर है पी, तो इन दोनों में से पहले क्या आएगा, फिर ए पी ई एप, देन ए डबल पी एल ई एप्पल, एंड द थर्ड इज एटलास, थर्ड इज एटलास। आपको समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया? लुक एट फर्स्ट, ए अल्फ़ाबेट को हमने अवॉइड किया, करेक्ट। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के पास गए, तो पी पहले आता है, तो इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, दोनों में पी होने के कारण हम थर्ड अल्फ़ाबेट के पास गए, तो थर्ड अल्फ़ाबेट में ई और इसमें आया है पी, तो ई और पी में पहले ई आता है, इसलिए हमने ए पे यहाँ लिखा, फिर एप्पल लिखा और फिर एटलास लिखा। क्लियर? यस। नाउ द 3, 4, 5 यू हैव टू डू योर सेल्फ। ये क्या करना है, आपको सेल्फ करना है। क्लियर? ओके, देयर इज़ नॉट ओनली 3, 4, 5 बट 6, 7 ऑल्सो, 6, 7 भी है, तो ये भी आपको सेल्फ ही करना है। What is the B exercise here? Put the following words in alphabetical order. Note that every word in each series starts with the same letter. और आपको क्या नोट करना है, यहाँ पहले ही बताया है कि सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं इसका फर्स्ट लेटर, note that every word in each series starts with the सेम लेटर, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें क्या करना है, ऑब्वियसली स्किप करना है। तो अब जब हम सेकंड लेटर देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना। लुक, तो पी एक बार हम सबका क्या कर देंगे बच्चे, अवॉइड कर देंगे। पी जो है वो हमने सबका अवॉइड कर दिया, क्यों? क्योंकि सब में पी आ रहा है। अब सेकंड अल्फ़ाबेट आप देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सबसे पहले आ रहा है एच, बिकॉज यहाँ पर देखिए आई अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं और एच अल्फ़ाबेट वाले वर्ड हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंट के लिए हम एच अल्फ़ाबेट को एक बार सर्कल कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि पी के बाद एच फ़ोन में भी आया है और पी के बाद एच फ्रेज में भी आया है। एट दिस टाइम व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे हम, थर्ड अल्फ़ाबेट के पास जाएंगे। नाउ टेल मी, क्या पहले आता है, ओ पहले आता है या आर पहले आता है? तो हम पहुँचे एच तक, आगे अल्फ़ाबेट बोलिए, आई जे के एल एम एन ओ। अभी तक तो आर नहीं आया क्योंकि ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा,
तो पहले आया ओ, तो ये हुआ क्लियर कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर वर्ड आएगा फ़ोन, एंड देन आएगा फ्रेज। देन फ्रेज क्यों आएगा? क्योंकि पी के बाद एच आया है और बाकी सब में है आई। तो इन दो वर्ड में हमने डिसाइड करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ़ोन लिखा, देन हमने लिखा फ्रेज और दोनों को सर्कल किया है। इट मीन्स ये तो हमारे वर्ड्स दोनों हो गए। नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग 4 वर्ड। रिमेनिंग 4 वर्ड में पी आई आया है, इसमें भी पी आई आया, अब इसमें भी पी आई आया। तो जस्ट प्रोसीड टू थर्ड अल्फ़ाबेट। हम चलिए थर्ड अल्फ़ाबेट के पास जाते हैं। क्या है बेटा थर्ड अल्फ़ाबेट? पी आई सी। तो ए बी सी पहले आता है, देन वी विल, अच्छा, हियर इज़ अल्सो सी, पिकनिक में भी सी वर्ड है। तो अब हम करते हैं इन दोनों को सर्कल, है ना। अब देखेंगे, डिसाइड करते हैं कि पहले पिकनिक आएगा या पहले पिक्चर आएगा। 1 2 3 अल्फ़ाबेट दोनों वर्ड के सेम है। देन व्हाट विल वी डू? वेरी गुड, वी विल प्रोसीड टू फोर्थ अल्फ़ाबेट। एंड नाउ टेल मी व्हाट कम्स फर्स्ट, एन और टी? Very good, N come first, so we will put here picnic first, and then we will put here picture. मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट का ही लिख रहे हैं हम, then I will just clear it, ठीक है। पिक्चर, तो ये दोनों अल्फ़ाबेट भी हो गए अपने। नाउ लेट्स सी, ये दोनों वर्ड भी हो गए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। तो पी आई ई और पी आई आर थर्ड अल्फ़ाबेट में क्लियर हो गया कि ई पहले आता है, आर बाद में आता है। देन आई विल पुट हियर पी आई ई सी ई, पीस, एंड पायरेट, पी आई आर ए टी ई। क्लियर है? तो दिस इज alphabetical order. We have put all these words in alphabetical order. Let's see the next one. Second example देखते हैं हम alphabetical order का। misery, mistake, miserable, mishap, mislead, missing। अब आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले कि MIS, 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 3 अल्फ़ाबेट सबके सेम है। देन डायरेक्टली वी विल जज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और वी कैन से टू पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वी हैव टू मार्च, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द फोर्थ अल्फ़ाबेट। हमें कहाँ जाना होगा? डायरेक्ट फोर्थ अल्फ़ाबेट में। तो देखिए, एक में आ रहा है ई, हम लिख लेते हैं, उसके बाद आ रहा है टी, अगेन आ रहा है ई, फिर आ रहा है एच, उसके बाद आ रहा है एल, और उसके बाद आ रहा है एस। तो हम कहाँ जाते हैं अब? ये ई दोनों के सेम जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इसका अगला, इट मीन्स फिफ्थ अल्फ़ाबेट हम चेक कर लेते हैं, है ना। एक में आया है आर, MISE आर, एंड MISE आर। अब आर भी आया है सेम, आर भी आ गया है सेम। तो क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड, अगला अल्फ़ाबेट 6 के पास जाएंगे। तो इसके पास है Y और इसके पास है A। सो व्हाट शुड वी हैव टू पुट द फर्स्ट? मिजरेबल। व्हाट वी हैव टू पुट फर्स्ट? मिजरेबल, मिजरेबल। देन सेकंड आएगा आपके माइजरी, ठीक है। मिजरेबल आया है फर्स्ट, सेकंड आया मिजरी। देन लेट्स सी मिस्टेक, मिसहैप, मिसलीड, मिसिंग। तो मिस्टेक और मिसहैप, मिसलीड, मिसिंग में सबसे पहले MIS के अगला फोर्थ अल्फ़ाबेट हम देखते हैं, तो आता है H। सो वी विल पुट हियर ऑन 3 नंबर मिसहैप। देन बचे हैं हमारे पास 3 वर्ड, मिसलीड, मिसिंग एंड मिस्टेक। तो हम फोर्थ अल्फ़ाबेट को जज करेंगे। एक में आया है T, एक में आया है L और एक में आया है S। तो पहले क्या आएगा बच्चे? वेरी गुड, मिसलीड आएगा। क्या आएगा? मिसलीड, क्योंकि MIS, L पहले आता है और T बाद में आता है ना। और फिफ्थ नंबर पर आएगा मिसिंग। क्यों आएगा फिफ्थ नंबर पर मिसिंग? द सेम थिंग,
इसमें आया है टी और इसमें आया है फोर्थ अल्फ़ाबेट एस, तो पहले एस आता है, एस के जस्ट बाद टी आता है ना, PQRST, यस। तो ये आएगा अब अपने 6 नंबर पर। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब 3, 4 जो हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप करेंगे, एंड ये लेक्चर जो है वो आज हम यहाँ ओवर करेंगे बिकॉज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देन यू वॉन्ट टेक इंटरेस्ट टू सी। नाउ व्हाट विल वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर। हमें डिक्शनरी का यहाँ पर मीनिंग दिया है कि व्हाट डिक्शनरी, जैसे हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा, वैसे डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में क्या क्या डिफ़ाइन किया हुआ होता है, एंड हाउ वी सर्च डिक्शनरी, डिक्शनरी में वर्ड कैसे सर्च किया जाता है, हाउ वी सी द डिक्शनरी, हाउ कैन वी फाइंड द वर्ड्स इन डिक्शनरी, वी विल सी इन नेक्स्ट lecture. Thank you very much. Have a good day beta. Bye bye.